الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. علم الفرائض یا علم المیراث کے احوال یعنی اصحاب فرائض کے احوال وہ ہم پڑھ چکے ہیں. اصحاب فرائض کے احوال کو مکمل طور پر علی وجہ بصیرت جاننے اور سمجھنے کے لیے اسباب کو جاننا اور حجب کی بحث کو جاننا یہ ضروری ہے، کیونکہ اصحاب فرائض کے احوال میں بعض احوال کا تعلق اسباب کے ساتھ ہے، تو بعض احوال کا تعلق حجب کے ساتھ ہے. تو اگر کوئی شخص اسبا ہے تو اسبا بنفسی ہے، اسبا بغیری ہی ہے یا اسبا مع غیری ہے، تو اس حالت کا علم غیر اسباب کی بحث کے وہ علی وجہ بصیرت نہیں آئے گا. اور اسی طرح جو اصحاب فرائض محجوب ہوتے ہیں تو محجوب ہونے والی حالت اور ان کے حاجب کا علم حجب والی بحث کے بغیر وہ علی وجہ بصیرت نہیں آئے گا. تو جب آپ اسباب اور حجب ان دونوں بحثوں کی روشنی میں اصحاب فرائض کو آپ سمجھ لیں، ان کے احوال کو اچھی طرح سے جان لیں، پھر اس کی مزید آپ پریکٹس کر لیں تاکہ آپ ہر وارث کا حصہ صحیح طور پر جان سکیں اور معلوم کر سکیں. اس کے بعد ذوی الارحام ہیں، ان کی 4 اقسام اور ان کی تقسیم کے طریقے وہ اخیر میں آتے ہیں اور ان کی عام طور پہ حاجت نہیں پڑتی، بہت کم حاجت پڑتی ہے. عمومی مسائل جو ترکہ کے اور میراث کے ہوتے ہیں تو ان میں اصحاب فرائض اور اسباب ہی ہوا کرتے ہیں. تو انشاءاللہ وہ بھی ہم اصحاب ذوی الارحام کے جو بحث ہے وہ بھی پڑھیں گے. تو علم میراث کے 2 حصے ہو گئے. ایک حصہ وہ تھیوری ہے، وہ آپ نے زبانی یاد کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، یعنی ورثہ کے حصے جاننا. حصہ اول تو ورثہ کے حصے جاننے کے لیے آپ کو اسباب کا علم ہو، آپ کو حجب کی بحث کا علم ہو، اور ان دونوں ابحاث کی روشنی میں اصحاب فرائض کے احوال کا علم ہو. اور اس کے ساتھ جو موانع ارث ہیں وہ بھی معلوم ہونے چاہیے تاکہ اگر کوئی وارث اس خاص مسئلے میں محروم ہے تو وہ بھی پتہ چل سکے. تو یہ پہلا حصہ ہو گیا ہے. تو یہ پہلا حصہ اگر آپ جان لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، اور ہمارے بیان کردہ طریقے مطابق اس کو سمجھنا جاننا کوئی مشکل نہیں ہے، تو اس کے بعد باقی دوسرا حصہ ہے یہ علم حساب کے قواعد پر مشتمل ہے. تو جو افراد حساب پڑھے ہوئے ہیں، ریاضی پڑھے ہوئے ہیں، تو وہ ان قواعد کو جانے بغیر بھی علم میراث کے مسائل تقریباً حل کر لیتے ہیں. آپ دیکھیں ذرا بغیر قواعد کی ہر ایک مثال میں نے یہاں دی ہے. ماں، باپ اور 2 بیٹیاں. تو ماں کو کتنا حصہ ملے گا؟ اصحاب فرائض کے احوال جو آپ نے پہلے پڑھے تو وہ
3 अहवाल हैं, सुदस और सुदस मा बाकिया और सुदस बिजमी अलमाल। तो सुदस मिलने की शर्त ये है कि रिश्ता जुलियत का एक या रिश्ता अखुवत के 2 फर्द हों। यहाँ रिश्ता जुलियत के अफराद यानी बेटियाँ मौजूद हैं, इसलिए माँ को छठा हिस्सा मिलेगा। और बाप के 3 अहवाल हैं, महज असबा तब है जब रिश्ता जुलियत का कोई फ़र्द ना हो, और असबा मा सुदस वो उस वक्त बनेगा जब रिश्ता जुलियत का मुज़क्कर फ़र्द कोई ना हो और मुनस फ़र्द हो। यहाँ बेटियाँ मौजूद हैं, मुनस फ़र्द रिश्ता जुलियत का मौजूद है, तो बाप को छठा हिस्सा मिलेगा और असबा भी बनेगा। और बेटियाँ इनके 3 अहवाल हैं। तो पहली जो है असबा बिल गैर, जब मैयत का कोई बेटा मौजूद हो, और फिर अगर बेटा ना हो तो फिर अकेली बेटियां हैं, तो एक बेटी है तो निसफ, एक ज़्यादा तो सुलुसान, या इससे ज़ायद हैं बेटियां 2 हैं तो सुलुसान मिल गया। तो अब एक तो यह है कि हम इसका मसले का मखरज मालूम करें। तो ये तो हिसाब के कवायद हैं, अगर इनके बगैर आप हल करें तो डायरेक्ट आप देखेंगे इसका तरीका है कितना, जो आपने तकसीम करना है इन अफराद में। तो फ़र्ज कर लिया कि ये तरीका है 90,000। अब 90,000 आपने इन वरासा में तकसीम करना है। तो अब 90,000 के साथ आप इन हिस्सों को ज़रब देते जाएं। जैसे 90,000 ज़रब बेटियों में 2/3 है, ज़रब 2/3 है। तो अब 3 को आप तकसीम करेंगे तो ये 3 3 9, ये जो 90,000 है ये हो जाएगा 30,000, और फिर आपको 2 से ज़रब देंगे तो ये हो जाएगा 60,000। तो बेटियों को 2 बेटियों को 60,000 मिलेगा, और एक बेटी को कितना मिलेगा 30,000। अब बाप का छठा हिस्सा है 1/6, इसको भी 90,000 से ज़रब दे दें तो ये देखें 6 1 6, 3 बचा 30 और 6 75, यानी 15 6 का 90, यहाँ 15 आ जाएगा, बाकी सिर्फ उसी तरह आ जाए, और यहाँ सिर्फ एक ही है तो इस तरफ खाएगा 15,000, ये आ गया। ठीक है, ये 15,000। और उसके बाद फिर आगे माँ का छठा हिस्सा है, वो भी बाप के छठे हिस्से की तरह है, वो भी अब 90,000 से खाएगा तो 15,000 आ गया। तो अब इनको जमा कर लें, अगर बाकी बचेगा तो वो बतौर असबा के बाप को मिल जाएगा। 60,000 तो 15,000 तो 15,000, इनको जमा करें तो कितना बन गया 90,000। तो अब बाकी कुछ नहीं बचा। अगर बाकी कुछ बच जाता तो हम ये जमा करके इनको कुल तरका से निकाल कर फिर जो बाकी बचा था वो भी बाप को दे देते, लेकिन यहाँ कुछ नहीं बचा। तो असल है वरासा के हिस्से जानना। तो आप असबाब की बहस, हजब की बहस अच्छी तरह पढ़ के और असहाब फ़राइज़ के हवाल को अच्छी तरह समझ लें, उनके बार बार तकरार कर लें, ताकि हर मसले में आपको हर उसका सही हिस्सा जान सकें। उसके बाद फिर ये हिसाबी कवायद हैं। तो अगर ये कवायद ना भी आएँ तो आप कैलकुलेटर के ज़रिए कुल तरका को हर वारिस के हिस्से से तरफ देते जाएं तो जवाब आता चला जाएगा। तो बहरहाल जो आम अफराद हैं उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो हिसाब के कवायद भी जानते हों, और जो हमारा आम मारूफ तरीका है और उसके मुताबिक ये कवायद भी जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो कवायद हैं वो कोई ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं हैं। पहला तो है कि मसले का मखरज निकालना। तो मैं मुख्तलिफ तरीक़ों से मसले का मखरज निकालना पहले वाले दुरूस में बता चुका हूँ। तो मसले का मखरज निकाल लेंगे तो आप हर वारिस का मखरज से हिस्सा, मसले के मखरज से हिस्सा निकाल लेंगे। फिर बाद का औल और रद, तस्हीह, तखारज इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो औल उस वक्त ज़रूरत पेश आती है कि जब जो नीचे हिस्से हैं वरासा के मजमूई तौर पे वो मखरज से बढ़ जाते हैं। तो फिर जितने हिस्से बड़े हैं उसी हिसाब से मखरज को बढ़ाना पड़ता है, ताकि
जो हिस्सों का मजमुआ है और मसले का मखरज है दोनों बराबर रहे। तो इस अमल को औल कहते हैं और इंशाअल्लाह आप अगले दर्स में सीखेंगे। तीसरा रद्द है, ये औल का उल्ट है। औल में ये होता है कि नीचे हिस्सों का मजमुआ बढ़ जाता है, तो जितना बढ़ा उतना फिर मसले के मखरज को बढ़ाना पड़ता है। रद्द में होता है कि नीचे जो हिस्से हैं उनका मजमुआ छोटा हो जाता है, ऊपर मखरज वो बड़ा होता है, तो मखरज को फिर घटाना पड़ता है ताकि वो हिस्सों के मजमुए के बराबर हो जाए। तो ये अमल रद्द कहलाता है। तस्हीह इसमें यह है कि बाद वरासा के हिस्से वो कसर की शक्ल में आ जाते हैं, तो हम कसर को ख़त्म करने के लिए ताकि हर वारिस को वो बग़ैर कसर के सही अदद की शक्ल में वो पूरा पूरा हिस्सा मिले, उसके लिए हमें तस्हीह का अमल करना पड़ता है। तो इसमें मखरज बढ़ता है, जितना मखरज बढ़ेगा उसी हिसाब से नीचे हिस्से भी बढ़ जाते हैं। और तखारज में ये होता है कि कोई फ़र्द वो मीरास से मुकम्मल अपना हिस्सा नहीं लेता, वो शुरू कर लेता है किसी बात पर। मसलन खातून है, मरने वाली की ज़ौजा है, तो वो किसी बात पे शुरू कर ले, या शौहर है तो वो कहता है कि मैंने जो महर देना था अपनी ज़ौजा का अभी तक नहीं दिया, तो तुम महर रसा तुम लोग मुझे वो छोड़ दो, मैं वारासत से अपना हिस्सा छोड़ देता हूँ उसके इवज़। यूँ कोई वारिस वो शुरू कर लेता है किसी बात पर और वो वरासत से हिस्सा नहीं लेता, तो उसके लिए फिर ये किया जाता है कि पहले मसले को उसको शामिल करके, उस वारिस को जो निकलने वाला है उसको शामिल करके मसला हल कर लेते हैं, फिर मसले के मखरज से उसका हिस्सा निकाल देते हैं, नीचे से उसका हिस्सा ख़त्म कर देते हैं। यह अमल तखारज कहलाता है। तो मसले का मखरज मालूम करना, फिर आगे ये 4 कवायद हैं, और रद्द, तस्हीह, तखारज, ठीक है। उसके बाद फिर हर वारिस का हिस्सा मालूम करना। तो अगर वो रसा जो हैं वो एक जिन्स के एक से ज़ायद हैं, जैसे यहाँ बेटियाँ हैं तो वो एक से ज़ायद है, 2 हैं, तो इनका तो हिस्सा जैसे 60 है यहाँ, तो 60,000 का हमने कहा 2 बेटियाँ हैं तो एक बेटी को 30,000 मिलेगा। तो ये हर वारिस का हिस्सा निकालना किस से, तरके से, कि तरका कितना मिलेगा। पहले जो हमने मसले का मखरज निकाला, तो मसले को जो हल किया था, तो वो हमने जो मखरज बनाया था मसले का, उस मखरज से हर वारिस को कितना हिस्सा मिलता है, तो वो हमने निकाला था और वो हल किया था। तो अब ये निकालना है कि उसका कुल तरका कितना है, वो तरका यहाँ लेके तो फिर वो हिस्सा निकाला जाता है। तो वहाँ भी ये होता है कि तरके से ज़रब देना पड़ती है, ठीक है। जो हिस्सा मखरज से मिला हुआ है उसको तरके ज़रब देते हैं और मखरज पे तकसीम करते हैं, तो यूँ हर वारिस का हिस्सा निकल आता है। इसके बाद फिर आगे ये ज़ुल अरहाम के अहवाल आते हैं, बीच में मुकासमा आता है, और मुकासमे की मुफ्ताबे कौल पे हाजित नहीं पड़ती, क्योंकि जब जद्द सही मौजूद हो तो भाई बहन, हकीकी भाई बहन, जो भाई बहन है वो वारिस नहीं बनते, हकीकी हों, लाती हों, खियाफी हों, जद्द सही की मौजूदगी में। और ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मज़हब है और यही मुफ्ताबे कौल है। तो मुफ्ताबे कौल पर मुकासमे की हाजत नहीं पड़ती, और साहिबान जो है वो जद्द सही की मौजूदगी में भी जो हकीकी भाई बहन हैं उनको वारिस बनाते हैं। तो उनकी तफसील आप आगे जान लेंगे। तो 2 हिस्से हो गए मीरास के, एक है वरासा के हिस्से पहचानना, ठीक है। तो हिस्से पहचानने के बाद आप अपने अक्ल से, समझ से, और जो आपको रियाजी आती है उसकी मदद से भी आप काफ़ी हद तक आप जो असल मकसद है कि हर वारिस का तरके से हिस्सा मालूम करना, वो आप कर सकेंगे। कहीं हो सकता है कि वो पेचीदगी आए आपको, जैसे और वगैरह के मसले में। बाकी जो मारूफ तरीका है तो वरासा के हिस्से जानने के बाद फिर दूसरा हिस्सा है जो हिसाब के कवायद पर मुश्तमिल है, तो उसमें मसले का मखरज निकालना और रद्द, तस्हीह, तखारज, और फिर हर वारिस का तरके से हिस्सा निकालना।
تو یہ دو حصے ہو گئے، ایک گویا کہ تھیوری ہے اور ایک پریکٹیکل ہے۔ تو اس طرح یہ ایک میں نے بطور خلاصہ کے یہ گفتگو کی ہے۔ انشاءاللہ پھر ہم اگلے دروس میں یہ آگے ابحاث کریں گے۔ مسئلے کا مخرج نکالنا یہ تو میں پہلے بتا چکا ہوں، باقی جو ابحاث باقی ہیں اور لا تصحیح تخارج اور ہر وارث کا ترک سے حصہ معلوم کرنا، انشاءاللہ اگلے دروس میں انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔